Okay, so I'm saving this file first time. Okay, I'm going to give it some pandas cute 8. Okay, so we have saved the file with this name, and all we need to do now is firstly we are going to import data frame, and now I mean pandas, and besides that I'm also going to import numpy because many times they're going to use it. Okay, so uh, import pandas as pd and import numpy as mp. So we have imported both these modules, libraries. Now we are going to do what we are going to do is we are going to iterate a data frame. Okay, we are going to iterate a data frame. Okay, so before we do that, let's take a data frame as well, right? And instead of writing a data frame, I would like to basically take, I mean, take some data on which we could work, right? So let's take some data here in the form of data. Say, okay, which data set? Let's say we are going with the iris data set. Okay, so iris data set is inside the folder data sets. So I'm going to data is equals to uh, ed read underscore csv. And inside that we are going to give the location first, right? Datasets, and inside datasets I have to go to folder which goes by the name of iris. So copy the name iris, and inside iris I'm going to go to this particular dataset iris.csv. So I have imported this data, and I'm going to print the head of it just to uh, see if I have imported data properly or not. Okay. Oh, I will use this again. Okay, so we have the data here. We can see that it has one first column is ID, second column is sepal length, third is sepal width, fourth is petal length, fifth is petal width, and fifth is the species. Okay, it's let's also have a look at the summary of this data before we do something with it. Okay, data dot describe. Okay. Level. So we have 150 rows of data. Okay, the mean is 75.5 for the first one, which is basically ID. So ID is of no use for us. For sample length, we have mean 5.84. For sample width, it's सर 3.05. Yes. सर कोई भी फाइल ओपन कर ले Uh, you can open any file that you want to open with, or you can open the iris one itself, right? Okay, so these are some of the statistics. The largest value that sepal length has is 7.9. Okay, and the minimum value it has is 4.3. Mean is 5.8. Median is also 5.8. I mean, mean is 5.843, and median is 5.80 here. Standard deviation is 0.82, and similarly, these data are described for each of the column that we have in our data, right? Except for the last column, which is our categorical data. I mean, if you look at this, all these four columns here, these are all numerical data. These contain numerical data inside it. But the last column, which goes by the name of species, it has categorical data. It has three categories inside it. If you want to see it, we can see it like this: data, and inside data we are going to go with uh, the name of the column, species, okay, species, and what? सर ये वाली फाइल नहीं है Okay, you guys don't have this file. Just a second. सर नहीं है ये फाइल You guys can download it right away, uh, or I could
just email you guys this video. Okay, just give me a second. I'll upload the file, and you guys can download it directly. Okay, I'm stopping the recording for a minute. Oh, wait, instead of stopping the recording, I'm stopping the presentation for a minute. Okay, so I'm going to open my Gmail here, send you guys the data. Okay, so I'm going to start with the screen again. Okay, and just before that, let me share the WhatsApp for you guys. Okay, so I've shared the link on WhatsApp. Besides that, I'm going to share the link on here is okay, Aaron Post. Okay, so the link is available on WhatsApp for you guys. And besides that, I'm going to make the same link available on here as well. So in the comment box, I have given you guys the link. Okay, and this is the link to the RS data set. So you guys can click it directly and you can download it. Okay, and why do we have captions on here? Let's turn it off. Okay, so let's get back to the folder, the file again. Okay, so we have imported the file, we have described the data so that we know that if there is anything different available inside here. Okay, now what I want to do is I want to iterate over my data. Okay, so there are three functions which are available to iterate over my data, and those three functions are the first one is iter items. Okay, this function it iterates over the key वैल्यू पेयर। ठीक है, तो हर एक की के लिए हर एक वैल्यू को आइटरेट करता है। ठीक है, हर एक की और हर एक वैल्यू को आइटरेट करने की कोशिश करता है। तो एक बार लेट्स हैव अ लुक एट आइटरेट आइटम्स। ओके, so that we have an idea about how this thing basically works for us. So from the definition we know that it prints out two values, key and value both। ठीक है, तो if I have to work I mean iterate over this thing, then I'll have to have two variables inside my for. So I'll have a key, okay, and I'll have a, let's say the two variables are k comma v, okay. For item, instead of writing or I can write as item one comma item two, for item in। ठीक है, और मेरा डेटा फ्रेम क्या है, मेरा डेटा फ्रेम है डेटा। ठीक है, तो मैं डेटा के अंदर जाना चाहूंगा और मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई करना चाहूंगा, आइटम आइटम इस फंक्शन को। और मैं चाहूंगा कि आइटम वन और आइटम टू मेरे पास प्रिंट होके आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या मैंने प्रिंट किया, मैंने लिखा डबल कोड के अंदर लिखा मैंने की, क्योंकि पहला आइटम इसके अंदर क्या है, की। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आइटम वन को प्रिंट किया। ठीक है, फिर मैंने लिया यहाँ पर दूसरी चीज, इसका नाम है वैल्यू। ठीक है, और
यहाँ पे मैंने यहाँ इसका आइटम 2 प्रिंट कर दिया. So this should print all the keys and the values that are there in my data frame. Let's have a look at it. For name item is not defined. Okay, item 1 है ये item. Let's print it. And we have the values of. ठीक है, तो हमारे पास हर एक की के लिए हर एक वैल्यू का पेयर अवेलेबल है. देखो इसमें बहुत सारे हर एक कॉलम के लिए प्रिंट होगा. तो की क्या है, हमारा की बन जाता है, हमारा जो इंडेक्स है, जो हमारे हर एक रो का इंडेक्स है वो हमारा की है. और यहाँ पे आईडी उसकी वैल्यू है पहली बार. दूसरी बार सेपल लेंथ कॉलम के लिए है तो सेपल लेंथ उसकी वैल्यू है. तीसरी बार सेपल विड्थ उसकी वैल्यू है. चौथी बार पेटल विड्थ उसकी वैल्यू है. फिर पेटल लेंथ उसकी वैल्यू है. और लास्ट में हमारे पास पेटल सॉरी स्पीशीज. तो ये क्या कर रहा है, सभी कॉलम को उठा रहा है जो हमारा ओरिजिनल डेटा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इंडेक्स लिखा हुआ देख रहे हो आप लोग, ये हमारा बन जाता है की. और पहली बार आईडी कॉलम उठाया तो ये उसका वैल्यू, फिर सेपल लेंथ उठाया तो ये उसका वैल्यू, फिर इसको उठाया तो ये उसका वैल्यू, फिर इसको उठाया तो ये उसका वैल्यू, ऐसे करके वन रन कर रहा है. अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज को उठाए, ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू, लेट्स सपोज कि आई वांट के ये सिर्फ और सिर्फ सेपल विड्थ का ही निकाले, तो मैं क्या करूँगा, डेटा में मैं किसको सिलेक्ट करके रखूंगा, मैं सेपल अगर मैं सेपल विड्थ को निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सेपल विथ सेम. ठीक है, सेपल विड्थ का सीएम लिया हमने. और अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सेपल विड्थ के लिए प्रिंट करके देगा. तो देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेपल विड्थ के लिए ये प्रिंट करके दे रहा है वैल्यू. एंड और प्रॉब्लम इज क्लियरली सॉल्व किया. तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के लिए वैल्यू आउटपुट करके देगा. तो डिपेंडिंग अपॉन हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, हम उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं. ठीक है, तो रन दिस थिंग फॉर मिनट एंड लेट मी पुट माय लैपटॉप चार्जिंग मोड. So this is one way of iterating over data in data frame. But if you can see, it iterates over both key and value. So we have a tuple, I mean, as an output, and many times we do not want that. Many times what we want is कि सिर्फ और सिर्फ हम जो हमारा रोज है उसको ऊपर आइटरेट कर पाए. ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ रोज को ऊपर आइटरेट करना है तो मेरे पास एक और फंक्शन है उसके लिए अवेलेबल है जो कि इटर रोज नाम से है, ITERROWS. ठीक है, ये कैसा आइटरेट करता है, आइटरेट्स ओवर द रो एज इंडेक्स कॉमा सीरीज पेयर. तो ये क्या करता है, हर एक इंडेक्स को लेता है और उसके साथ में पूरा कॉलम को एज अ वैल्यू उठाता है, यानी ये एक सीरीज बना के उठाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग हर एक कॉलम के लिए प्रिंट हो गया है, इसमें ऐसा नहीं होगा. ठीक है, इसमें जो दूसरा पार्ट होगा वो एज अ सीरीज, वो एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आउटपुट आएगा. तो लेट्स हैव अ लुक एट इट फॉर आइटम 3 कॉमा आइटम आइटम 4. ठीक है, और हम यहाँ पे भी आइटम 1 कॉमा आइटम 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हाट मेक अ डिफरेंस फॉर आइटम 1 आइटम 2 इन डेटा. ठीक है, डेटा डॉट यहाँ पे हम आइटर रोज का इस्तेमाल करना चाहेंगे. ठीक है, और हमने ये फंक्शन लगाया और यहाँ पे हम प्रिंट करना चाहेंगे वैल्यूज को. ठीक है, सीधा प्रिंट कर लेते हैं आइटम 1 कॉमा आइटम 2. ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे देते हैं. ओके ओके, तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे ओके वेट अ सेकंड, इसने इससे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास 5 डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट निकल के आ रहे थे, वो 5 अलग अलग कॉलम के लिए आ रहे थे. लेकिन इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पे इस बार 149 डिफरेंट आउटपुट आ रहे हैं. 149 यानी हर एक रो एक आउटपुट बन के आ रहा है. ये है रो नंबर 1, सॉरी 149 नहीं 150, जीरो से शुरू हो रहा है क्योंकि. ठीक है, तो ये मेरा 149th इंडेक्स जो है मेरा, जो कि मेरा 150th एलिमेंट है बेसिकली, उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं ये यहाँ पे आउटपुट आ गया है हमारा. तो ये क्या कर रहा है, हर एक रो को इंडिविजुअली उठा के मुझे प्रिंट करके दे रहा है. ठीक है, तो मेरे पास जितने रोज होंगे यहाँ पे उतने आउटपुट मिलने वाला है हमें. ठीक है, लास्ट में हमारे पास एक और तीसरा मेथड जो है, द थर्ड मेथड इज इटर टपल्स, ITERTUPLES, इटर टपल्स. ठीक है, ये क्या करता है, इट आइटरेट्स ओवर the rows as named tuple. ठीक है,
तो अब इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। फॉर आइटम इन डेटा डॉट इटरेटिव, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर क्या करना चाहूँगा, मैं इसको सीधा सीधा प्रिंट करना चाहूँगा मेरा आइटम को जो इसके अंदर लिया हुआ है, ठीक है। एंड लेट्स कॉपी दिस पार्ट सो दैट इट डिफरेंशिएट्स बट ओके। Okay, so again this time we have 150 rows of data printed, पर इस बार क्या हो रहा है, इस बार मेरा डेटा एक सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम में प्रिंट होके, आई मीन हर एक रो जो है वो एक रो बन के प्रिंट होके आ रही है प्रॉपर्ली। मेरे पास एक सीरीज और मतलब मेरे पास एक की और एक सीरीज नहीं है, या फिर एक की और एक वैल्यू नहीं है। मेरे पास क्या है, एक पूरा पूरा टपल है जो कि मेरे पास आउटपुट के फॉर्मेट में आ रहा है। तो मेरे टपल के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर आइटम को यहाँ पे एक्सेस करना, जैसे लास्ट लास्ट आइटम है मेरा, तो मेरा ये वाला है 149 वाला, तो इस आइटम के अंदर जाके मैं एक्सेस कर सकता हूँ एलिमेंट्स को। आइटम जीरो पे क्या है, 149, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर मुझे सैपल विद 3.0 वाली वैल्यू चाहिए तो 0 1 2 3, आई गो टू 3 इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स आई हैव 3.0। अगर मुझे ये पेटल विड्थ चाहिए तो आई हैव टू राइट 5 देयर, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, मेरे पास पेटल विड्थ आ गई 1.2। सो इट्स अ टपल विच वी गेट एज एन आउटपुट। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम डेटा फ्रेम को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा मुझे एक और तरीका है जो कि काफ़ी पसंद है। अगर मैं सभी कॉलम्स के ऊपर अगर मैं आइटरेट करना चाहता हूँ तो जैसे कि आप पांडास में जितने भी कॉलम्स हैं आपके, उसको ऊपर अगर आप आइटरेट करना चाहते हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डेटा डॉट कॉलम्स है, ठीक है। ये सारे कॉलम्स के नेम आ गए यहाँ पर, और लेट्स सपोज मैं इन सभी कॉलम नेम्स के ऊपर आइटरेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर आइटम इन डेटा डॉट कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे आया, इसके अंदर मैं पहले कॉलम के अंदर गया, फॉर आइटम टू इन, ठीक है, आइटम, ठीक है। ये जो आइटम है, यहाँ पे जो भी कॉलम उठा है, मैं उसके सारे वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया आइटम और यहाँ पे लिया मैंने आइटम टू, ठीक है। इसको लिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने प्रिंट कर दिया आइटम टू। तो इस तरीके से भी यहाँ पे देखो इसका कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो फॉर लूप है। अगर एक सिंगल फॉर लूप है तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी एन होता है, अगर एक के अंदर एक और फॉर लूप हो रहा है, ठीक है, यानी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का इस्तेमाल हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे रन करता हूँ, सारी वैल्यू इंडिविजुअली प्रिंट करता जाएगा, देख लो ये एक एक वैल्यू प्रिंट करता जाता है। तो दिस इज अनदर वे, बट डिपेंड करता है आपको आपको किस चीज़ की जरूरत है, कब और कहाँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपना इस रिक्वायरमेंट को चेंज करोगे आप लोग, ठीक है। अगली चीज़ है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आई थिंक हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था, सॉर्ट, चलो कोई नहीं, दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, नॉट बिग इशू, ठीक है। तो अगली चीज़ जो हम ट्राई करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है सॉर्टिंग, ठीक है। तो सॉर्टिंग करने वाले हम लोग, ठीक है। सॉर्ट भी कई तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार दो तरीके हैं इसके अंदर, ठीक है। सॉर्टिंग हो गया, सॉर्टिंग के अंदर दो तरीके हैं। पहला तरीका है बाय लेबल, ठीक है, लेवल के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे पास बाय एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो दोनों को ट्राई कर देंगे किस तरीके से हम अपने डेटा फ्रेम को, जैसे कि अगर मेरे पास कोविड 19 का डेटा है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जो जिस स्टेट का हाईएस्ट नंबर हो कोविड 19 का के केसेस का, वो टॉप पे आए, सेकंड हाईएस्ट सेकंड पे आया है, ठीक है, सबसे कम जहाँ केस है वो लास्ट में आया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने अपने रोज जो मेरा डेटा है, जितने भी मेरे रोज है, मैं चाहूँगा कि वो सॉर्टेड हो, ठीक है। तो मैं अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इन दोनों में से कोई ना कोई एक तरीका अपनाना पड़ेगा उसको करने के लिए, ठीक है। तो फिर से मेरे पास डेटा ऑलरेडी इंपोर्टेड है, ठीक है, और डेटा हमने देखा भी हुआ है। तो अगर मुझे लेवल से सॉर्ट करना है तो मुझे एक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है। और इसमें मुझे अपना इंडेक्स का वैल्यू भी पास करना पड़ता है कभी, बट दैट्स नॉट इशू, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए, बाय डिफॉल्ट तो कॉलम को ही लेने वाला है। तो हम फिर से अपना डेटा उठाएंगे, ठीक है।
और मैं उसको सॉर्ट करके प्रिंट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया सॉर्टेड डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। इसके थ्रू मैं डेटा के अंदर जाना चाहता हूँ, डेटा के अंदर जाके मैं क्या करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। सॉर्ट इंडेक्स यानी कि लेबल के थ्रू मैं उसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। और लेट्स सपोज कि मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ। अगर मैं डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ तो एस सी ई एन टी आई जी इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। एफ कैपिटल से होगा फॉल्स का, याद रहे। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो अब मैंने इसको अप्लाई किया और याद रहे अगर मैं सिर्फ इतना ही करके छोड़ देता हूँ तो ये मेरा इन प्लेस है, इससे मेरा डेटा के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको करने के बाद जो भी चेंज आएगा अगर मुझे उसको सेव करना है तो उसे मुझे एक नए वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डेटा पे ऊपर सॉर्ट इंडेक्स लगाया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं अपने डेटा को यहाँ पे किया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उसको सॉर्टेड डेटा के अंदर सेव कर लिया मैंने उसको। लेट्स प्रिंट दिस थिंग एंड सी व्हाट काइंड ऑफ एरर डू वी गेट। और मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देना चाहूँगा। चलो छोड़ो, ओके। सो वी हैव आवर डेटा सॉर्टेड। अब इसने सॉर्टेड क्या कैसे किया है, बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, पहला कॉलम जो है मेरा उसके थ्रू इसको सॉर्ट कर दिया है। तो पहले कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसको उठाया और उसके अकॉर्डिंग बाकी सभी को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग मेरा सॉर्ट हो, ठीक है, कि मतलब बाय पासिंग द, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलम सॉर्ट हो यानी कि ये वाला कॉलम मेरा पहले आए दूसरा वाला कॉलम मेरे बाद में आए, तो मुझे यहाँ पे सॉर्टेड इंडेक्स के साथ साथ यहाँ पे मुझे एक क्या बोलते हैं एक्सिस भी पास कर सकता हूँ। एक्सिस इज इक्वल्स टू 1, याद रहे एक्सिस इक्वल्स टू 1 का मीनिंग होता है कि हम कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो देखो स्पीशीज आ गया पहले, सेपल विड्थ आ गया, उसके बाद आईडी आ गया लास्ट में, तो ये अलग तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन हम कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं, हमारे पास कई तरीके हैं इसमें सॉर्ट करने के लिए इनको, ठीक है। लेट्स सपोज के अब मैं क्या, अभी तक मैंने जो किया है वो इंडेक्स के थ्रू किया है, ये देख रहे हो आप, इंडेक्स को मैंने सॉर्ट किया है, इंडेक्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यूज है इनके अंदर हर एक कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है उनके बेसिस पे पूरा पूरा सॉर्ट होके आए, ठीक है, बाय एक्चुअल वैल्यू। तो उसके लिए मुझे जो फंक्शन इस्तेमाल करना होगा उसका नाम है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। तो ये कॉलम की वैल्यूज का इस्तेमाल करेगा सॉर्ट करने के लिए, अब ये इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। सो एक्सिस 1 डालने से असेंडिंग में आएगा क्या? नहीं 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 नहीं, असेंडिंग में अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे असेंडिंग को ट्रू कर दोगे। यहाँ पे जो हमारा अभी तक आउटपुट आया है ना वो एक्सिस के अकॉर्डिंग देखो, एक्सिस में जब मैंने यहाँ पर देखो एक्सिस का जब मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है, और मैंने असेंडिंग को यहाँ पे फॉल्स करके रखा, तब इसने जो मुझे आउटपुट दिया है वो क्या किया है इसने, सबसे बड़ा इंडेक्स जो है उसको उसने ऊपर रखा है, उससे छोटा उसके नीचे, उससे छोटा उसके नीचे, उससे छोटा उससे नीचे। ये किसके लिए किया है, रो के लिए किया है। अगर मैं चाहता हूँ कॉलम के लिए करें, यानी कि कॉलम के लिए क्या है, ये जीरो इंडेक्स कॉलम, ये फर्स्ट इंडेक्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स इंडेक्स कॉलम। तो अगर मैं कॉलम के लिए करना चाहता हूँ मैंने एक्सेस इक्वल्स टू 1 कर दिया, ठीक है। तो अब देखो सबसे वो वाला कॉलम जिसका इंडेक्स सबसे ज्यादा था वो पहले आ गया, और वो इंडेक्स जिसका सबसे छोटा था जिसकी इंडेक्स वैल्यू वो वहां पे पहुंच गया। अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग डिपेंड करता है इस वेरिएबल के ऊपर कि हम इस वेरिएबल को क्या वैल्यू देते हैं। असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर दो तो डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्टिंग थी, पर इंडेक्स बेस्ड सॉर्टिंग हमें उतनी ज्यादा यूज में आती नहीं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सॉर्टेड बाय वैल्यू, जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि अगर मैं चाहता हूँ कि जिस स्टेट में सबसे ज्यादा केसेस हो टॉप पे आए या नीचे से शुरू हो, ठीक है। तो जो वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट होगा उसके लिए हमें एक्चुअल वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड हेंस वी विल हैव टू यूज सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू फंक्शन, ठीक है। और जब हम सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू करेंगे तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि किस कॉलम के बेसिस, किस कॉलम का इस्तेमाल करना चाहते हैं हम डेटा को सॉर्ट करने के लिए। हमारे डेटा में क्योंकि 6 कॉलम है, राइट, इंडेक्स से लगाए सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ और स्पीशीज, राइट। तो हमारे पास 6 कॉलम है, 6 में से कौन से कॉलम के बेसिस पे मेरा डेटा सॉर्ट हो, मुझे इसमें ये भी डिफाइन करना पड़ता है सॉर्ट वैल्यू के साथ साथ, ठीक है। तो लेट्स डू अ सॉर्ट वैल्यू एग्जांपल, ठीक है।
सॉर्ट वैल्यू, ठीक है, एस स्मॉल है, ठीक है, तो लेट्स डू दिस और सॉर्टेड बाय वेल, ठीक है, या फिर सॉर्ट बाय वेल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने डेटा लिखा, डेटा में सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, याद रहे वैल्यूज है, वैल्यू नहीं है, ठीक है, वैल्यूज, ठीक है। और इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से कॉलम के थ्रू मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं जिस कॉलम के थ्रू करना चाहता हूँ वो कॉलम है मैं किसके थ्रू करूँ, लेट्स सपोज कि हम सेपल विड्थ के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है, सेपल विड्थ सेंटीमीटर, तो मैंने एग्जैक्ट नेम उठाया और जिस कॉलम के थ्रू करना है उस कॉलम को यहाँ पे लिखा। और अब मैं अगर मैं इस डेटा को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, सॉर्ट अंडरस्कोर, राइट, तो अब ये मेरा डेटा उस इस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा, ठीक है। तो देखो इस कॉलम में कहाँ गया हमारा सेपल विड्थ सेंटीमीटर, सेपल लेंथ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नजर आ रहा है, सैंपल लेंथ को ले लिया हमने। और हमने यहाँ पे क्योंकि कुछ भी डिफाइन नहीं किया कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो उसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। जो सबसे छोटी वैल्यू थी वहां से शुरू किया और सबसे बड़ी वैल्यू पे लाके इसने खत्म कर दिया। तो मेरा सारा डेटा अब इसके अकॉर्डिंग अरेंज है, ठीक है। तो अगर ये 4.5 वाले का ओरिजिनली इंडेक्स कुछ और था तो अब इसका इंडेक्स कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे चाहता हूँ कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो मैं क्या करूँगा, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, फिर से मैंने वही अप्लाई कर दिया, सेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब देखो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लिया, अब पूरा डेटा मेरा इस अकॉर्डिंग अरेंज है कि 7.9 से शुरू हो रहा है और 4.3 पे खत्म हो रहा है। तो ये तरीका है सर हमारे, यस, हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे जिस स्टेट की स्पेलिंग सबसे बड़ी है उसे हाँ, सबसे नीचे रखें और जिसकी स्पेलिंग छोटी है उसे सबसे टॉप पे। यस, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करो, हर एक कॉलम का नाम उठाओ, ठीक है, जो आप बात बोले उसके लिए आप क्या करोगे, डेटा का कॉलम उठाओगे, डेटा कॉलम्स, ठीक है, डेटा डॉट कॉलम्स उठाया, आपको सारी वैल्यूज मिल गई। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर मूव करना चाहोगे, जैसे कि इसका भी जो आपने सवाल पूछा इसका भी सॉल्यूशन है। आपने क्या किया, फॉर आइटम इन डेटा डॉट कॉलम्स, ठीक है, आपने इसके अंदर गए और आपने क्या पता लगाया, लेंथ ऑफ आइटम्स, ठीक है। और लेट्स सपोज आप क्या कर रहे हो, आप इसको एक खाली वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हो, ठीक है। नेम लेंथ नाम का आपने एक लिस्ट लिया है और आप क्या कर रहे हो, उसी के अंदर इसको अपेंड कर रहे हो, नेम अंडरस्कोर लेंथ डॉट अपेंड, ठीक है। तो अब आप इसको रन करोगे तो हर एक कॉलम की जो लेंथ है, ठीक है, वो नेम लेंथ के अंदर सेव हो गई है कि इसकी आईडी के लिए जो लेंथ है उसकी 2 है, उसके बाद वाले की 13 लेंथ है, उसके बाद वाले का 12 है, 13 है, 12 है, 17 है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको एज ए की डिक्शनरी के पेयर की तरह सेव कर सकते थे, राइट, डिक्शनरी के पेयर की तरह सेव करते तो क्या करते आप इसका नाम और ये डेटा दोनों एक साथ सेव कर सकते थे। और वो कैसे करते, आप लेते यहाँ पर आप यहाँ पे एक और कॉलम ले सकते थे, इसका नाम रख सकते थे आप नेम, खाली, ठीक है। और आपने एक और लिस्ट लिया यहाँ पर, उसके बाद नेम डॉट अपेंड किया, अपेंड में आपने डाला उसको आइटम, ठीक है। तो आपने क्या किया, कॉलम का नाम भी सेव कर लिया और कॉलम की लेंथ भी सेव कर ली, दो अलग अलग वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो, नेम आ गया है, ठीक है, उसी ऑर्डर में भी सेव है, ठीक है, नेम अंडरस्कोर लेंथ हो गया, ठीक है। अब आप इससे डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी में ये आपका क्या, जो आपका क्या नाम है, जो कॉलम का नाम है वो आपका की बन जाएगा और उसकी जो वैल्यू है वो उसका वैल्यू बन, सॉरी, जो लेंथ है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। कॉलम का नाम की बन जाएगा, कॉलम की लेंथ उसकी वैल्यू बन जाएगी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, की और वैल्यू के पेयर पे आप अपने कॉलम को सॉर्ट कर सकते हो कि
कौन सा कॉलम पहले आएगा, कौन सा कॉलम बाद में आएगा। ये भी तरीका अपना सकते हो आप। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आपका कॉलम सॉर्ट हो जाता है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप वही कॉलम का ऑर्डर डेटा फ्रेम को पास कर दोगे और उसके थ्रू हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करो इन चीज़ों के साथ, एक्सपेरिमेंटेशन के साथ ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जो हमारा कोविड-19 वाला फाइल है पाइथन का, उसके अंदर ये काम किया हुआ है हम लोगों ने, तो आपके पास वो फाइल अवेलेबल भी है, सो यू कैन सी द सेम थिंग हैपनिंग इनसाइड इट एज वेल। ओके, ओके सर। तो ये था हमारा सॉर्टिंग था, ठीक है। और हमारे पास क्या नाम है, टेक्स्ट के भी कुछ फंक्शन हैं जो पांडास के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, पर वो हमने उसके ऊपर पहले ही काम कर रखा है। जैसे इज लोअर हो गया, इज अपर हो गया, स्वैप केस हो गया, फाइंड ऑल हो गया, फाइंड हो गया, एंड्स विद, स्टार्ट्स विद, काउंट, रिपीट, रिप्लेस हो गया, स्प्लिट हो गया, स्ट्रिप हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ, अपर लोअर, ये सारे फंक्शन में लिस्ट के लिए भी पड़े हुए हैं। Same functions are applicable on pandas as well. So I'm not going to cover this part. I'm going to leave this part for you to cover, because as far as I know, many of you have already covered it for the list. So the same thing needs to be applied over data frame as well. Okay. So the next thing that we are going to have a look at is okay, not this. Indexing and selecting data. We had done the indexing and selecting data. We have used the lock, which is used for label based selection of data, and we had also used iloc for integer based selection, and then we had used ix, which was used for label and integer based selection. ये तीनों चीज हमने स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस पार्ट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इन फ्रॉम आवर सिलेबस इज ओके, लेट्स अप्लाई एग्रीगेशन, ठीक है। एग्रीगेशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि पूरे पूरे डेटा सेट के ऊपर किसी तरह का एग्रीगेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एग्रीगेशन अप्लाई करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कोई डेटा उठाते हैं जो कि हमने खुद ने क्रिएट किया हुआ हो, और फिर हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली एग्रीगेशन के लिए रुक जाओ, एग्रीगेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले मिसिंग डेटा को हैंडल कैसे करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर कोई डेटा मिसिंग है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मैंने इससे पहले ही बताया था कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर हर 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 दिन कोविड-19 में कितने केसेस हुए हैं उसका रिकॉर्ड है, लेकिन मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर ऐसा दिन है जब 600 700 800 लगातार हो रहा था, लेकिन एक दिन 0 केसेस रिकॉर्ड हुए, और उसके अगले दिन 1800 केस रिकॉर्ड हो गए एकदम से, और फिर दोबारा 1600, आई मीन दोबारा 800 900 700 600 होने लग गया। तो वो डेटा देखने में ही मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो जो डेटा, जो वैल्यू मुझे गड़बड़ लग रही है, दो वैल्यू गड़बड़ लग रही है, एक तो जीरो और एक है जो कि ऑलमोस्ट डबल नजर आ रहा है बाकी दिनों से। तो मैं इन दोनों वैल्यूज के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पता लगाना चाहूंगा कि अगर ये दोनों वैल्यूज को मैं मिसिंग कर दूं, यानी कि अनअवेलेबल कर दूं, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास डेटा है और कोई ना कोई एक वैल्यू है कॉलम के अंदर जो मिसिंग है, एक या दो या एक से ज्यादा वैल्यूज हैं हमारे पास मिसिंग है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसे मिसिंग वैल्यू होती है तो हम उसको रिप्लेस कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें उसको पता लगाना पड़ता है कि क्या हमारे कॉलम के अंदर कोई कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम डेलिबरेटली गोइंग टू डिलीट, ठीक है। आई एम डेलिबरेटली गोइंग टू डिलीट अ पर्टिकुलर value in from my data, ठीक है। So let's say कि I'm going to delete this particular value and this particular value. So now my data has some values which are not available. So here data is missing and here data is missing. I'm going to save this, okay, so that this thing is available to us, ठीक है। अभी भी मैं इसको रन करूंगा तो सब कुछ प्रॉपरली चलेगा, जो नल वैल्यू है उसको उठा लेगा और सारा कॉलम की जो वैल्यूज है वो मेरा फ्लोट फॉर्मेट में आएगा। लेकिन अब अगर मुझे पता करना है कि मेरे पास नल वैल्यू है या नहीं मेरे डेटा के अंदर, तो सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका जो होता है डेटा डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा,
क्योंकि यहीं पे सब कुछ नजर आ जाता है। वैसे तो ये देखो, इसने बताया कि आईडी में मेरे पास 150 रो है और मेरे डेटा के अंदर कितना है, 150 रोज है और 6 कॉलम है। ये तो मुझे अपने डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसके अंदर 150 रोज है, इसके अंदर भी 150 रोज है, लेकिन यहाँ पर 149 रोज, यानी कि एक डेटा यहाँ पे मिसिंग है सेपल विड्थ में। यहाँ पर भी 149 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक डेटा है जो मिसिंग है। यहाँ पे 150 है, यानी कि यहाँ पे पूरा है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया देखने का, एक तरीका हो गया। इसके अलावा मिसिंग वैल्यू का पता लगाने का एक और तरीका होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है इज नल। ठीक है, एक फंक्शन होता है हमारे पास जिसका नाम होता है इज नल। तो लेट्स से कि मैंने डेटा अप्लाई किया, ठीक है, और मैं यहाँ प्रिंट करना चाहूंगा, इसका आंसर जो होता है वो लॉजिकल फॉर्मेट होता है, डेटा डॉट इज नल फंक्शन का अप्लाई किया मैंने इसके ऊपर और मैं इसको प्रिंट किया और मैं जानना चाहता हूँ कि कोई डेटा कोई नल वैल्यू है या नहीं है। तो देखो, अगर हर एक कॉलम के अंदर अगर कोई वैल्यू नल नहीं है तो उसको फॉल्स लिख देता है, अगर कोई वैल्यू नल है तो उसके लिए ट्रू लिख के आंसर देता है। तो लेट्स सपोज कि मैं डेटा क्या करता हूँ, डेटा डॉट हेड उठाता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यू को नल किया है। 26 को किया है उधर, तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं 30 रोज उठाता हूँ। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू ट्रू लिखी हुई आ रही है और यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू लिखी हुई आ रही है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज जो है ये मेरे पास नल है, ये मुझे साफ साफ मालूम पड़ रहा है मेरे को डेटा देखने के साथ ही। तो अब क्योंकि ये दो वैल्यूज नल है तो इनको रिप्लेस करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि कॉलम के मीन से इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, कॉलम के मीन के बेसिस पे। कुछ तरीके और होते हैं कि रिग्रेशन अप्लाई करो, रिग्रेशन के बेसिस बेसिस पे इसको रिप्लेस कर दो। कई बार क्या होता है कि नल वैल्यू होती है, मैं चाहता हूँ कि नल वैल्यू को जीरो से रिप्लेस कर दो। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप उसको किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हो। और कई बार ऐसा होता है कि मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मेरे मेरे पास कोई ऐसा रो है जिसके अंदर नल वैल्यू है तो मैं उस रो को ही डिलीट कर देना चाहता हूँ, कि मुझे ऐसा रो चाहिए ही नहीं जो कि मेरे डेटा में मिसिंग वैल्यू का को मतलब को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो हम ये तीनों ही चीजें ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास मिसिंग डेटा है हम उसको उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आई मीन उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं पहले हम लोग। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ना एक इस डेटा को मैं फिर से प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ कि नैन फॉर्मेट में आउटपुट आता है या किस फॉर्मेट में आउटपुट आता है। ठीक है, यस, यहाँ पे मैं इज नल का फंक्शन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रिंट माई डेटा सिंपली। गोइंग टू प्रिंट माई डेटा सिंपली। तो यहाँ पे देखो, जो खाली वैल्यू वो किससे रिप्लेस हो गई है, नैन से, NAN, नॉट अ नंबर। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स सपोज मिसिंग डेटा को फिल करने का तरीका, सबसे सिंपल तरीका जो है मिसिंग डेटा को फिल करने के लिए, ठीक है, हम सबसे पहले इसको किससे फिल करने वाले हैं, जीरो। हम चाहते हैं यहाँ वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है, मैं सपोज मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं अपने डेटा डेटा के अंदर गया और मैंने क्या किया, मैंने किया कि रिप्लेस फंक्शन को अप्लाई किया अपने डेटा के ऊपर। ठीक है, और रिप्लेस फंक्शन अप्लाई किया कि नैन को रिप्लेस करके जीरो वहां पे पुट कर दो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फिल ना मेथड का इस्तेमाल करूंगा, फिल NA, FILL NA। ठीक है, इसका मतलब है कि नॉट अ नंबर को इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू यहाँ दूंगा उससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, डेटा डॉट रिप्लेस, ठीक है, सॉरी, डेटा डॉट फिल NA विद जीरो। तो मैंने यहाँ जीरो को पास कर दिया डेटा के अंदर, डेटा डॉट फिल NA जीरो, और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, और मैं डेटा डॉट फिलना हेड, ठीक है, इसके बाद मैं चाहूँगा कि हेड फंक्शन, हेड के अंदर भी मैं 30 वैल्यूज चाहूँगा आउटपुट में। ठीक है, ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू नॉट NAN लिखी हुई है वो रिप्लेस हो गई है 0.0 से। सिमिलरली यहाँ पे भी जो वैल्यू थी वो जीरो से रिप्लेस हो गई है। तो ये एक कॉमन तरीका है रिप्लेस करने का। यहाँ पे आप कुछ और वैल्यू भी ले सकते थे, जैसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं कॉलम के मीन से। ठीक है, तो लेट्स सपोज आप कॉलम के मीन से इसको रिप्लेस करना चाहते हो, रिप्लेसिंग विद मीन। तो आपने क्या किया,
जो भी कॉलम में है, जिस भी कॉलम में वो नल वैल्यू आई है, ठीक है, इस कॉलम का नाम क्या है, इस कॉलम का नाम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस कॉलम के अंदर गया, ठीक है, डेटा, ठीक है, इस कॉलम के अंदर गया मैं, ठीक है, और इस कॉलम के अंदर जो भी मेरी नल वैल्यू आई है, ठीक है, तो फिल, सॉरी, डॉट फिल एन ए, ठीक है, उसको मैंने रिप्लेस किससे किया, जो है मेरा डेटा, ठीक है, डेटा के अंदर मेरा क्या है, ये पर्टिकुलर कॉलम, और इसके मीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करूँगा अगर, तो ये चीज़ इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, प्रिंट करने से वैल्यू आउटपुट में दिखाई देने लग जाएगी। तो पेटल लेंथ वाले के अंदर हमने इसको शिफ्ट किया है, तो रिप्लेस क्यों नहीं हुआ पेटल लेंथ, पेटल लेंथ सी एल, यहाँ पे वैल्यू जीरो क्यों आ रही है, रॉन्ग है। वैल्यू आ रही है, ओके, लेट्स से कि इसको वेरिएबल को हम एक्स में सेव कर लेते हैं और यहाँ पे एक्स पास कर देते हैं, शुड बी मेकिंग डिफरेंस दो, लेट्स सी फॉर, ओके, तो ये हमारे पास आ गई, और अगर आप अब गौर से देखोगे मेरा कॉलम प्रिंट होके आया है, इस कॉलम के अंदर जो इसका जो मीन है उससे रिप्लेस हो गया है। अगर अ, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं और मैं इसको प्रिंट करूं, तो पहले ध्यान से देखें, तो ये जो जीरो जीरो वैल्यू थी वो किस कॉल आईडी के लिए थी, 24th के लिए, ठीक है, जो रो इंडेक्स 24 है उसमें मेरा वैल्यू जीरो था इसके लिए। लेकिन अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो इस कॉलम के 24th में इसने रिप्लेस कर दिया वैल्यू को उसके मीन के साथ, ठीक है। सिमिलरली मैं हर एक कॉलम के लिए जाकर के इस तरीके से जो मिसिंग वैल्यू है उसके मीन के साथ या मीडियन के साथ मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, या फिर मोड के साथ भी रिप्लेस कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मैं किस चीज़ के थ्रू उसको उसको फिल करना चाहता हूँ। तो ये कुछ तरीका है जिसके थ्रू हम क्या बोलते हैं, नल वैल्यूज को, मिसिंग वैल्यूज को जो है हम फिल कर सकते हैं किसी न किसी वैल्यू से। लेट्स सपोज के मैं चाहता हूँ कि जो मिसिंग वैल्यू है ना वो उनको ड्रॉप ही कर दूं, ठीक है। तो अगला तरीका क्या है, ड्रॉपिंग द मिसिंग वैल्यूज। अगर मेरे पास मिसिंग वैल्यू वाला रो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं उसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। तो मैं पूरा पूरा रो उस वाले को ड्रॉप कर दूंगा जो कि मेरा नल वाला आता है, जिसमें मेरा नल वैल्यू आ रहा है। तो उसके लिए मुझे फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ड्रॉप एन ए, ठीक है, ड्रॉप एन ए। तो मैंने क्या किया, प्रिंट कर देता हूँ, मैंने डेटा के अंदर गया और मैंने डी आर ओ पी एन ए फंक्शन का अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास दो ऐसे रोज हैं जिनके अंदर नल वैल्यू है, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा उसमें से वो दो रोज डिलीट हो गई। तो मेरे पास अब कितने रोज है, मेरे पास 148 है। और अगर मैं इस डेटा का हेड प्रिंट करूंगा ना, अगर मैं इस डेटा का हेड प्रिंट करता हूँ, हेड के अंदर 30, तो वो दोनों इंडेक्सेस अवेलेबल ही नहीं होंगे। देखो यहाँ पे 21 22 23 24 वाला इंडेक्स अनअवेलेबल, 25 26 का 27 वाला इंडेक्स अनअवेलेबल, क्योंकि वो रोज थे, इंडेक्स थे जिनके लिए किसी न किसी एक कॉलम में जो वैल्यू थी वो जीरो थी। तो ये एक और तरीका है कि मेरे पास नल वैल्यू है और मैं इसको डील नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने हटा दिया किसी न किसी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप डेटा स्क्रैप करते हो इंटरनेट पे से, तो कई बार क्या होता है कि आपका जो डेटा लिखा हुआ आ रहा है, लेट्स सपोज आपके पास डेटा लिखा हुआ आ रहा है ANTARCTIC, और कई बार क्या होता है यहाँ पे \n लिखा हुआ आता है, \n लिखा हुआ आता है, क्योंकि आपने इंटरनेट से डेटा स्क्रैप किया है, तो कई बार उनका फॉर्मेट लिखने का क्या है उसके बेसिस पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है।
और आप क्या चाहते हो कि ये चीज आपके डेटा के अंदर नजर आए ही ना, तो आप क्या करोगे कि ये चीज उसमें वैसे अभी अवेलेबल नहीं है, बट अगर मुझे इसको चेंज करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन इसका इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है रिप्लेस। तो डेटा डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में मैं जिस भी वैल्यू को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं सपोज कि ये वो एक कॉलम की वैल्यू है जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने उस वैल्यू को यहाँ पे डबल कोड के अंदर डाला कि ये वो वैल्यू है मेरा जिसको के रिप्लेस करना है, और उसके आगे मैं वो वैल्यू डाल दूंगा जो कि चाहता हूँ मैं इसकी जगह पे आए। सपोज इसकी जगह पे मैं क्या चाहता हूँ, ए एन सॉरी डबल कोड के अंदर ANTARCTIC, तो मैं चाहता हूँ कि डबल बैकस्लैशन हट के सिंपल अंटार्कटिका लिखा हुआ है, तो मैं इसको डॉट रिप्लेस फंक्शन के अंदर ऐसे अप्लाई कर दूंगा और ये मेरा काम करने लग जाएगा। तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए, कि मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। अभी अभी चार इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कि हम अभी और इस्तेमाल करना चाहेंगे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कई बार क्या होता है कि मैं अपने डेटा में ना, मेरे पास देखो बहुत सारे कॉलम्स हैं यहाँ पे, तो मैं सारे कॉलम्स इसमें नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स का ग्रुप ही मुझे मिल जाए, और मैं अपने डेटा को उसके बेसिस पे स्प्लिट कर पाऊँ, उसको कोई फंक्शन अप्लाई कर पाऊँ, या फिर मैं उन्हें कंबाइन करके कुछ रिजल्ट्स निकाल पाऊँ, ठीक है। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा करना है, आई मीन जैसे कि मैं अभी एग्रीगेशन या ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फिल्टर की बात करूं, तो अगर इन तीनों ऐसे फंक्शंस के ऊपर अगर मुझे कुछ कुछ इन तरह की चीजें करनी है, तो मुझे ग्रुप बाय फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। ग्रुप बाय ऑपरेशन क्या करता है, स्प्लिट करता है मेरे ऑब्जेक्ट को, अप्लाई करता है उसके ऊपर एक फंक्शन को, और फिर कंबाइनिंग कुछ परफॉर्म करता है उसके ऊपर, और उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट दे देता है, ठीक है। ज्यादातर सिचुएशन में हमारे पास जो जो डेटा होता है ना, उसको उसको सेट्स में डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है, और उनके ऊपर किसी तरह का फंक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, फंक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीगेशन, जैसे कि समरी स्टैटिस्टिक पता लगा सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर मुझे किसी का BMI कैलकुलेट करना है, ठीक है, मेरे पास उनका हाइट है, विड्थ है, आई मीन वेट अवेलेबल है, तो मैं मेरे पास एक नया कॉलम ऐड कर सकता हूँ BMI नाम का, जो कि हाइट और वेट के बेसिस पे निकाला जा सकता है, राइट। मैं कोई किसी तरह का फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ वही वैल्यू मेरे इस डेटा फ्रेम के अंदर आए जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि ओनली 60 टू 80 केजी के बीच में जो लोग हैं सिर्फ वही मेरे पास कैटेगरी में आए, तो मेरा टारगेट जो है 60 टू 80 के बीच में है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिल्ट्रेशन अप्लाई किया कि ओनली सिलेक्ट दो कॉलम जिनका के वेट 60 से ऊपर हो या फिर 80 से कम हो, ठीक है। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई जो भी कर रहे हैं कॉलम्स, सॉरी जो भी रोज उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका हर एक कॉलम के लिए, सिर्फ उन्हीं को ही मैं चाहता हूँ कि मेरे आउटपुट में नजर आए, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास है इसमें स्पीशीज है हमारे पास, ठीक है। स्पीशीज में हमारे पास तीन तरह की स्पीशीज हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, और तीन तरह की स्पीशीज ये मुझे कैसे मालूम पड़ा, मैंने लगाया डेटा, डेटा के ऊपर मैंने अप्लाई किया SPECIES इसके ऊपर मैं सेट फंक्शन भी अप्लाई कर सकता था, देखो यहाँ पे आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्सिकलर एंड आयरिस वर्जिनिका, ये तीन तरह के फ्लावर्स हैं आयरिस वाले, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। मैं डायरेक्टली इसके ऊपर मैं लेंथ फंक्शन भी अप्लाई कर सकता था जो कि हमारे लिए काम करता, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेंथ फंक्शन अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो डायरेक्टली ये मुझे रो का लेंथ भी, ये मुझे रो का लेंथ बता देगा कितने रोज हैं मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं इस यूनिक के ऊपर के बजाय मैं क्या करूँ, इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ सेम चीज को, तो दिस टू शैल वर्क फॉर अस, ठीक है। ओके, मैंने क्या किया, ओहो लेंथ के ऊपर लेंथ लगा दिया, लेट्स रन फॉर दिस इज वेयर आई हिट अप्लाई, ठीक है। इट गिव्स मी द लेंथ। तो ये सिंपल तरीका है लेंथ पता लगाने का, कितनी तरह की यूनिक वैल्यूज है आपके पास, ठीक है। यूनिक अप्लाई करते के साथ उसने यूनिक वैल्यूज बता दी,
और उसका लेंथ निकालने के साथ हमारे पास लेंथ भी निकल के आ गया। तो लेट्स सपोज अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय करना चाहता हूँ स्पीसीज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैंने कर लिया डेटा डेटा डॉट GROUP ग्रुप बाय स्पीशीज SPECIES। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्पीशीज के बेसिस से मेरा डेटा को आई हैव Hello, टू कमेंट इट आउट। sir. यस यस Sir, sir, मैंने आपको सेंड किया है। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी हैव अ लुक एट इट। ओके, आई हैव रिसीव्ड। आपने जो अंटार्कटिका से पहले और बाद में देखो आप क्या करो ना, अगर आपको, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था और मैंने एक छोटा सा एरर किया था। डबल कोड यहाँ पे शुरू हो रहा था और यहाँ पे खत्म हो जा रहा था, एंड दैट वाज एन एरर। ठीक है, और फिर ये जो बीच का एरिया था ये स्ट्रिंग तो था लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं था, इसलिए एरर आ था। फिर यहाँ पे डबल कोड शुरू होता, डबल कोड खत्म हो रहा था, तो मैंने कहा आप इसको सिंगल कोड से रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास एरर नहीं आएगा। ठीक है, और इसको कमेंट आउट करो, इस लाइन को मैंने Okay, sir. कमेंट आउट कर दिया है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हमारा देखो ऑब्जेक्ट निकल के आ चुका है और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उनको देख सकूँ, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ग्रुप को अप्लाई किया, ग्रुप्स एक्चुअली, एंड देन आई एम गोइंग टू रन दिस थिंग। इट डज नॉट हैव data dot group by, okay, so I didn't have to write it here, I have to write it inside here on the data group. Okay, so I've got Iris Setosa. Okay, for that I've got these indexes, all these indexes, right? And then I've got Iris versicolor, जिसके रोज कौन कौन से इंडेक्स वाले हैं, इस वाले इंडेक्स पे हैं। एंड देन I've got Iris वर्जीनिका, जिनकी ये है। तो ये एक मेरे पास आउटपुट आया। ठीक है, ये मेरा डिक्शनरी फॉर्मेट में मेरे पास एक आउटपुट आ गया। ध्यान से देखो तो ये आउटपुट क्या है, एक डिक्शनरी है। लेट मी सेपरेट इट फॉर यू गाइस। backslash n. Okay, so the first key is iris setosa, और इसका जो वैल्यू है वो है मेरा इंडेक्स के लोकेशन, यानी कौन कौन से इंडेक्स है, कौन कौन से रो है, रो का इंडेक्स है जिसकी जिसके कॉलम की स्पीशीज की जो वैल्यू है वो आयरिस सिटोसा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के ये यहाँ तक 49 तक है। ठीक है, उसके बाद अगला जो मेरे पास की है वो क्या है, आयरिस वर्सिकलर, क्योंकि मेरा दूसरा फ्लावर है, और इसके जो भी इंडेक्सेस है वो इसकी वैल्यू के अंदर आ गए। तीसरा मेरे पास जो है वो आयरिस वर्जिनिका है, ये मेरे पास तीसरे तरह का फ्लावर है। ठीक है, और इसके सारे इंडेक्स मेरे पास यहाँ पे इकट्ठे होकर के आ गए। तो इसने क्या किया, मेरे डेटा को ग्रुप में डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, और जो भी ग्रुप्स हैं वो मेरे बन गए की, और जिस भी इंडेक्स पे वो अवेलेबल है वो इंडेक्सेस का जो लिस्ट है वो बन गया मेरा उसकी वैल्यू, उस की के लिए उसकी वैल्यू बन गई। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं आइटरेट करना चाहता हूँ ग्रुप्स के ऊपर। ठीक है, मैं हर एक ग्रुप के थ्रू पास करना चाहता हूँ अपने डेटा के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ग्रुप में डिवाइड किया है तो मैं इनके ऊपर काम भी करना चाहूंगा, राइट? तो अगर मुझे इन्हें अपने ग्रुप के ऊपर आइटरेट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर आइटम, ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ, स्पीशीज का इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉर स्पीशीज कॉमा ग्रुप। ठीक है, इन इन डेटा डॉट ग्रुप बाय स्पीशीज। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैंने ये डेटा में ग्रुप बाय फंक्शन को अप्लाई किया। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरे पास हर बार निकल के आएगा। मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट किया, मैंने यहाँ पर स्पीशीज। ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया ग्रुप। तो लेट्स हैव अ लुक एट कि ये आउटपुट में मुझे क्या देता है। ओके, तो मेरे पास 6 कॉलम के 50 एक, 6 कॉलम का 50 दो, और 6 कॉलम का 50 तीन। तो तीसरा
हर एक फ्लावर के लिए इसने क्या किया, मुझे अलग अलग प्रिंट करके आउटपुट दे दिया। तो ये जो स्पीशीज वाला ये जो फॉर लूप है, ये 3 बार चला। पहली बार जब चला तो उसने पहली बार में क्या आउटपुट दिया, पहली बार में हमने स्पीशीज का नाम प्रिंट किया, तो आयरिस वसी कलर प्रिंट होके आया क्योंकि स्पीशीज का नाम प्रिंट किया। और जैसे ही मैंने वो ग्रुप को प्रिंट किया तो उसने क्या किया, जितने भी इंडेक्स हैं इसके, ठीक है, सबसे पहला आरिसिटोसा था, तो आरिसिटोसा के लिए जितने भी इंडेक्स थे, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज थी सबको इसने प्रिंट कर दिया। देखो तो हर एक इंडेक्स पे जो स्पीशीज की वैल्यू है वो क्या है, आरिसिटोसा 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 आरिसिटोसा। सिमिलरली यहाँ पे आए, यहाँ पर सेकंड टाइम रन किया तो वैल्यू थी आयरिस वर्सिकलर। तो यहाँ पे देखो हर एक इंडेक्स के लिए वैल्यू क्या है, आयरिस वर्सिकलर। फिर थर्ड आया जिसमें क्या है, आरिस वजीनिका। तो यहाँ पे हर एक इंडेक्स के लिए वैल्यू क्या है, आरिस वजीनिका। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डेटा को ग्रुप करके हमें दे रहा है और हमें उसको एक्सेस करने के लिए, आइटरेट करने के लिए भी ऑप्शन दे रहा है हमारे पास क्वाइट इजीली। तो इससे क्या हो रहा है कि डेटा हमारा अभी भी हमारे सीएसवी के अंदर सेम फॉर्मेट में अवेलेबल है, लेकिन लेकिन अब क्या है कि उसको हमने अलग अलग लॉजिकली डिवाइड कर लिया और अब हम चाहें तो उनके ऊपर अलग अलग काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी एक सिंपल तरीका है एक और हमारे पास काम करने के लिए, डेटा को ग्रुप करके इसके ऊपर काम करने के लिए। लेट्स सपोज अब मैं चाहता हूं कि अब मेरे पास जो एग्रीगेटेड डेटा आया है, अ, अ, इसके ऊपर मैं कोई एग्रीगेशन अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं इसके ऊपर आसानी से कोई ना कोई भी एग्रीगेशन अप्लाई कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे पास 3 कॉलम है, जैसे कि हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स में बात कर रहे थे तो हम बोले थे 4 तरह के ग्रुप अवेलेबल थे, जैसे कि लोअर क्लास, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास एंड हाई क्लास। तो चारों मेरे पास एज अ कॉलम के अंदर ही तो वैल्यू के फॉर्म में अवेलेबल थे। तो अगर मैं उसको डिवाइड करता तो वो भी 4 तरीके के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब वहां पे हमारे पास क्वेश्चन में चारों तरह के ग्रुप के मीन का डेटा गिवन था, लेकिन अगर हमें निकालना होता तो हम उसके लिए क्या करते, डेटा के ऊपर एग्रीगेशन अप्लाई करते। ठीक है, एग्रीगेशन कैसे अप्लाई करते, अब मेरे पास क्या है, इसको ना एक तरीके से सेव कर लेते हैं। चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है जिससे कि चीज़ आसान बनी है। इसको हम ले लेते हैं जी नाम के एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, जिससे कि बार बार हमें सेम चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमने जी का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो अब मैं एग्रीगेशन अप्लाई करना चाहता हूँ और जी नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने ग्रुप बाय कर रखा है स्पीशीज के थ्रू, स्पीशीज जो कॉलम है मेरा उसके बेसिस पे। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि हर एक स्पीशीज के लिए मैं मीन का पता लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। ठीक है, और प्रिंट क्या करूँगा, जी के अंदर जाऊँगा। ठीक है, और मैं जिस भी कॉलम के लिए, ठीक है, लेट्स सपोज जो कॉलम है मेरा वो है सेपल लेंथ सीएम, मैं हर एक ग्रुप के लिए सेपल लेंथ सीएम का मीन पता लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेपल लेंथ सेंटीमीटर लिया और इसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई, कौन सा फंक्शन अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर मैंने फंक्शन अप्लाई कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, पहले तो प्रिंट हटा लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आएगा। मैंने क्या किया, जी सेपल लेंथ लिया, मैंने ग्रुप लिया, ग्रुप के अंदर सेपल लेंथ लिया और अब मैं उसके ऊपर एग्रीगेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ए डबल जी, ठीक है, एग्रीगेशन। और उसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया, एनपी डॉट मीन, यानी कि मैं इसको एज अ नंपाई एरे करने के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और अब मैं उसका मीन कैलकुलेट करना चाहता हूँ। हर एक ग्रुप के लिए सेपल लेंथ सेंटीमीटर का मैं मीन कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एग्रीगेशन के फॉर्म में इसको अप्लाई किया है और मैंने इसका मीन कैलकुलेट करने की कोशिश की। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट फंक्शन लगाया, इसको प्रिंट किया। ओके, कहाँ पे क्या मिसिंग है, डॉट ए जी जी एन पी मीन एन पी डॉट, ओ मैंने फंक्शन के फॉर्मेट में लगा दिया। ओके यस, सो अब मेरे पास क्या है, तीनों ही कॉलम्स के लिए, आई मीन तीनों ही ग्रुप के लिए, ठीक है, तीनों ही ग्रुप के लिए मेरे पास क्या बोलते हैं, सेपल लेंथ इन सेंटीमीटर के लिए जो मेरा मीन है वो कैलकुलेट होके आ गया कि आइरिस सिटोसा के लिए ये मीन है, आइरिस वर्सिकलर के लिए ये मीन है और आइरिस वर्जिनिका के लिए ये मीन है।
तो हमें मालूम पड़ रहा है कि ये जो तीसरे तरह का हमारा जो वेरिएशन है आरिस फ्लावर का, उसमें जो हमारा सेपल लेंथ है का जो मीन है वो हायर है एज कम्पेयर टू द अदर टू वर्जन्स। तो ये कुछ तरीके हैं एग्रीगेशन अप्लाई करने के, जिसके थ्रू हम अपने डेटा के ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं और भी तरीके के डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं, पता लगाते हैं। देखो, दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन इज, कि हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि हम और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का पता लगा सकें जो कि डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो आप लोगों को जो डेटा दिया हुआ है, जो कि ईडीए करना है आप लोगों को, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो आप लोगों को परफॉर्म करना है डेटा के ऊपर, उसमें ये सारी चीज़ें आप लोग भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि अगर ग्रुप्स हैं आपके पास तो आप हर एक ग्रुप का पता लगाएंगे कि उसका मीन क्या है, उसका मीडियन क्या है, और उसके पास और फीचर्स क्या हैं। फिर फर्दर आप इनको कंपेयर करना चाहेंगे यूजिंग, जैसे कि आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इनके बीच कोई कोरिलेशन है या नहीं, या फिर आप लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इनका इनका हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तीनों अलग अलग ग्रुप्स के लिए भी, राइट। तो ये बहुत सारे तरीके, आप इसमें बहुत सारा खिलवाड़ है जो कि आप कर सकते हो अपने तरीके से। ठीक है, अगली चीज, सो अगला चीज जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये अच्छा डेटा नहीं है, आई मीन इसमें कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म करने वाला है नहीं मेरे पास। बट लेट्स सपोज मेरे पास, एक बार हेलो, सर कब तक खत्म होगी आज की क्लास? कब तक खत्म होगी, अभी थोड़ा टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है। अभी हम ग्रुप बाय कर रहे हैं, इसके बाद मर्जिंग, कॉन्कैटिनेशन, और एक चीज़ और है, तीन चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये खत्म होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्ट्रेशन ये दो चीज़ अप्लाई कर लेते हैं, ये दोनों चीज़ भी करके देख लेते हैं कि होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन और होता क्या है मतलब फिल्ट्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं हर एक डेटा का जो हर एक ग्रुप है मेरे पास, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनको स्टैंडर्डाइज करना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कई बार हम डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं जिससे कि उसका मीन 0 हो जाए और वेरिएंस 1 हो जाए। जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा था उसके अंदर बताया था मैंने आप लोगों को, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करना चाहता हूँ, और वो भी हर एक कॉलम को। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से अपना ग्रुप उठाया, और ग्रुप के ऊपर अब मैं एक फंक्शन अप्लाई करना चाहूंगा जिसके थ्रू मैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया वेरिएबल लिया, इसका नाम लिखा मैंने ट्रांस। ठीक है, TRAN नाम रख लिया मैंने, और मैंने इसके ऊपर मैंने फंक्शन अप्लाई किया लैम्डा। लैम्डा इज ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एक ही जिसके अंदर मतलब दो तरह के आर्गुमेंट होते हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है फंक्शन बेस्ड आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट में मैंने क्या अप्लाई किया, यहाँ पर इनपुट में मैंने उसको दिया है वैल्यू, लेट्स से इनपुट मैंने उसको वैल्यू दिया है x। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो क्या कैलकुलेट करें, वो कैलकुलेट करें x माइनस एक्स डॉट मीन। ठीक है, हर एक कॉलम के लिए हर एक जो वैल्यू है उसको उस कॉलम के मीन से उसमें से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से, एक्स डॉट एस टी डी, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो। और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं, इतना ही चाहता हूँ, छोड़ो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मेरा प्रिंट होके अब आउटपुट में आए। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा जी डॉट, ठीक है, डॉट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, मैंने जी के ऊपर ट्रांसफॉर्म का अप्लाई किया, और ट्रांसफॉर्म कौन सा अप्लाई किया है मैंने, ये वाला। इसको ना एक बेहतर नाम दे देते हैं, स्टैंडर्डाइज, STANDARDIZE। ठीक है, तो मैंने एक स्टैंडर्डाइज नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, लैम्डा फंक्शन बनाया, और मैंने उसको अप्लाई कर दिया अपने पूरे पूरे ग्रुप के ऊपर, सभी ग्रुप्स के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, और अब इसने क्या किया, हर एक कॉलम को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब इसने क्या क्या किया, देखो हर एक कॉलम के लिए जो वैल्यूज है वो काफ़ी अलग अलग नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, सॉरी अभी मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ
देखो हर एक जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से, आप देखो आप नॉर्मली जो वैल्यू 5 4 6 7 8 9 जा रहे थे अब वैसी नहीं जा रही है। अब वैल्यूज मेरी कैसी हैं, अब मेरा जीरो मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, कुछ इस तरीके से। तो कुछ वैल्यूज नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। अब मेरी वैल्यूज ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है स्टैंडर्डाइज करने का, जो कि डेटा को हमने क्या किया, ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मैंने अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं फिल्टरिंग भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के अगर मैं चाहता हूँ कि अभी भी मेरा डेटा का फॉर्मेट तो एग्जैक्टली वही है, ध्यान से देखो। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं रोज को एक्सेस करना चाहता हूँ हर एक फ्लावर के अंदर जिनकी जो जिनका जो लेंथ है, सेपल लेंथ है, वो 5 से ऊपर है। 5 से नीचे वालों को मैं एक्सेस ही नहीं करना चाहता, लेट्स सपोज। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का फिल्टरिंग हो गया कि मैं बस उनको एक्सेस कर रहा हूँ जो कि 5 से ऊपर जिनकी सेपल लेंथ है। तो तीसरी चीज हम अप्लाई कर रहे हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और अब हमने क्या किया, हमने जो ग्रुप लिया हुआ है जी, जो हमने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर हम फिल्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, फिल्टर के अंदर हमने क्या बोला है, हमको एक फंक्शन का अप्लाई करना पड़ेगा जो कि फंक्शन हमें बताएगा कि फिल्टर कैसे करना है। ठीक है, वो फंक्शन क्या है, फंक्शन को अलग से लिख लेते हैं कि फंक्शन का हमने लिख दिया एफ। ठीक है, और यहाँ पे हमने फंक्शन फिर से लिखा लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। ठीक है, और हमने यहाँ पे इनपुट दिया है उसको एक्स। ठीक है, एक्स। और हमने क्या बोला है कि जब भी हमारा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.0, x की वैल्यू जब भी 5.0 से ऊपर हो, ठीक है, तब ये फंक्शन f जो है उसको हमारे आउटपुट में इंक्लूड कर दे। तो मैंने क्या किया, g के ऊपर फिल्टर अप्लाई किया। फिल्टर कौन सा अप्लाई किया, जो हमने डिफाइन किया है, जिसका नाम जो हमने f नाम के वेरिएबल में सेव कर रखा है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट में पास किया। तो नॉट सपोर्टेड, अच्छा इसमें मेरे पास दो तरह की वैल्यूज हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग कॉलम भी है, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ इसके ऊपर अभी। ओके वेट, डू वन थिंग, मेक द टास्क इजी फॉर अस। ओके, सो आई हैव टू रिमूव दिस पर्टिकुलर कॉलम। अगर मैं इस कॉलम को डिलीट कर दूँ तो मेरा काम करने लग जाएगा। ओके, दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू गाइस टू ट्राई। मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, पर मैं क्या चाहूँगा कि अब मेरे पास जो ये पर्टिकुलर ग्रुप्स निकल के आए हैं, इसमें से इस कॉलम को भी डिलीट कर दिया जाए। कॉलम को डिलीट करने का तरीका आप लोगों को सिखाया हुआ है ऑलरेडी से। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लिखें जो कि क्या करे, इस स्पीशीज नाम का जो कॉलम है उसको डिलीट कर दे सभी ग्रुप्स में से। एक बार हमारे पास वो ग्रुप क्रिएट हो गया उसके बाद, ठीक है, और उसके ऊपर ये फिल्टर फिर से उसके ऊपर अप्लाई करें। ये फिल्टर उसके ऊपर जब आप उसके बाद अप्लाई करोगे तो ये काम करने लग जाएगा फॉर दोज वैल्यूज। ठीक है, हालांकि आप फिल्टर और भी तरीके का अप्लाई कर सकते थे, बट ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल फॉर इट, नथिंग मोर देन दैट, राइट। ओके, अगली चीज़ जो हम ट्राई करने वाले हैं, ये था हमारा जो हमने ट्राई किया, इसको बोलते हैं ग्रुप बाय। अगली चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं मर्जिंग और जॉइनिंग। ठीक है, दो तरह के टास्क और हैं, उसके अलावा एक है कॉन्कैटिनेशन। तो ये दोनों चीज़ें करने वाले हैं हम लोग, मर्जिंग, ठीक है, और जॉइनिंग। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप में से कई लोगों ने सीक्वल पढ़ी होगी, माई एसक्यूएल, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो उसके अंदर कुछ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे ये जो कि ज्वाइन करते हैं, नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, बहुत तरह के ज्वाइन फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। तो पांडास भी हमें एक सिंगल फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है मर्ज। ठीक है, और ये हर तरह के डेटा जो जितने भी जो भी सीक्वल के जो भी ज्वाइन फंक्शन होते हैं ना, ये इन सभी तरीके को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो जो हमारा pd.merge जो है हमारे पास, ठीक है, इसमें कई तरह की वैल्यूज हैं जो कि यूज कर सकता है। लेफ्ट से ज्वाइन करो,
राइट से मर्ज करो, आई मीन लेफ्ट से मर्ज करो, राइट से मर्ज करो, इनर करो, ठीक है, या फिर इनर करना है या आउटर करना है, ठीक है, या फिर ऑन हमें राइट साइड से करना है या लेफ्ट साइड से करना है, या फिर लेफ्ट इंडेक्स का इस्तेमाल करना है या फिर राइट वाले इंडेक्स का इस्तेमाल करना है, सॉर्ट करना है या नहीं करना है। तो अगर मैं आप लोग चाहते हो उसका डेफिनेशन देखना तो आप उसका डेफिनेशन भी देख सकते हो। Come on. Come on. इट्स नॉट शोइंग, बट इसमें लेफ्ट का ऑप्शन है, राइट का ऑप्शन है, हाउ एक पैरामीटर है जो कि आपकी वैल्यू लेता है इनर, या फिर आप उसमें और भी तरह की वैल्यूज, ऑन होता है कि कॉलम्स को ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो कई तरह की वैल्यूज हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से उनका इस्तेमाल होता है, हाउ में आप लेफ्ट राइट आउटर इनर ऐसा कुछ भी अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग तरह के डेटा फ्रेम लेने होंगे और मैं दो तरह का डेटा फ्रेम अब डिफाइन करने वाला हूँ बाय हैंड, जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो एक है डेटा वन, ठीक है, डेटा फ्रेम, ठीक है। जब भी मेरे पास एक से ज़्यादा डेटा फ्रेम होंगे और मुझे उनको मर्ज करने की जरूरत होगी तो मुझे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको मर्ज करना चाहता हूँ। दो अलग अलग डेटा है, जैसे कि मेरे पास अभी 14 लोग हैं जिन्होंने 14 अलग अलग देशों का डेटा कलेक्ट किया है। तो अब 14 लोगों का डेटा कलेक्ट किया और मुझे 14 लोगों के डेटा के साथ एक साथ काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको मर्ज करना चाहूँगा। और डिपेंड करता है मैं उनको कैसे मर्ज करना चाहूँगा, मतलब हो सकता है कुछ लोगों ने एक से ज़्यादा फाइल बनाई हो, एक में उन्होंने कोविड-19 का डेटा कलेक्ट किया है, दूसरे में और भी एक्स्ट्रा डेटा जो कलेक्ट करने को बोला वो दूसरे फाइल में किया है। तो अब मुझे उन दोनों फाइल को मर्ज करके पहले एक फाइल बनाना पड़ेगा, राइट। तो मर्जिंग वहाँ पे काम आता है जब मेरा डेटा स्कैटर्ड होता है और मुझे उसको ज्वाइन करना है, पर उसका ज्वाइन करने का तरीका कौन सा होगा उसको हमें सोच के उसके बेसिस पे अपना मर्ज फंक्शन अप्लाई करना होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक क्या करते हैं, तीन वो ले लेते हैं हम लोग, दो कॉलम लेते हैं, ठीक है, डेटा फ्रेम में, और मैं स्टूडेंट्स का नाम ले लेते हैं, आईडी ले लेते हैं, और उनके सब्जेक्ट ले लेते हैं, सपोज सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास डिक्शनरी लेनी होगी मुझे डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है। डिक्शनरी लिया मैंने, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर पहला वेरिएबल जो रखा मैंने वो रखा मैंने नेम, ठीक है। नेम लिया मैंने, और लेट्स सपोज नेम में ले लेते हैं हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास है आशना है, ठीक है, हमारे पास, और ये लिस्ट में होगा हमारा क्योंकि आप हम इसको डेटा फ्रेम के अंदर सेव कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक कॉलम के लिए मल्टीपल वैल्यूज हैं, हमारे पास महक है, हमारे पास निशा है, हमारे क्लास में और कौन है, हमारे पास और कौन है, हमारे पास छवि है, ठीक है। तो लेट्स सपोज पांच ही ले लेते हैं, चार है काफी, ठीक है। हमने चार स्टूडेंट्स लिए, ठीक है। और ये हो गया हमारा पहले फीचर के लिए। दूसरा फीचर जो है हमारे पास वो है लेट्स सपोज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट लेट्स सपोज आशना का हो गया बीकॉम, और महक का हो गया बीकॉम, लेट्स सपोज निशा का भी हो गया बीकॉम, और छवि का हो गया, लेट्स सपोज इनका बी ले लेते हैं, एक का तो अलग हो, ठीक है। तीसरा इन्फॉर्मेशन जो मैं लेना चाहूँगा नेम डिपार्टमेंट के अलावा, लेट्स सपोज मैंने इन लोगों को अपनी क्लास में रोल नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यू आई डी, लेट्स सपोज ये नाम दिया हुआ है हमने, ठीक है, क्लास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सभी की आईडी ले लेते हैं, ये हो गया लेट्स सपोज इनके लिए हो गया, आशना के लिए हो गया 5, हेड के लिए हो गया 42, निशा के लिए हो गया 27, और छवि के लिए हो गया 12, ठीक है। तो हमारे पास इनकी आईडीज भी है, तो ये मेरा एक डेटा है, डेटा वन, ठीक है। उसी तरीके से थोड़े दिन बाद मेरे पास फिर से रजिस्ट्रेशन हुए और मेरे पास एक और डेटा कलेक्ट होके आया। तो अब मैंने दूसरा डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है, डी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। और मैंने इसके अंदर भी डिक्शनरी लिया, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने फिर से नाम सेव किया, लेकिन ठीक है, ऐसे ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस यहाँ पे नाम अलग कर लेते हैं, ठीक है।
हमारे पास और कौन कौन से स्टूडेंट थे? हमारे पास स्टूडेंट हिमांशी, हमारे पास एक रियल स्टूडेंट है संजना, हमारे पास स्वाति है, हमारे पास स्वीटी है, ठीक है। और मैं सपोज के ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और मैं सपोज इनका रोल नंबर 21 है, इनका रोल नंबर 25 है, इनका रोल नंबर 2 है, इनका रोल नंबर 15 है। ओके, तो अब मेरे पास दो अलग अलग डेटा फ्रेम है, और अगर आप ध्यान से देखो तो इनके कॉलम्स का नाम सेम है, ठीक है, और इनमें जो वैल्यूज है वो काफ़ी अलग अलग हैं। तो अब मैं इस डेटा को कई तरीके से ज्वाइन कर सकता हूँ, अपने इन दोनों डेटा फ्रेम को कई तरीके से ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं मर्ज करने की कोशिश करता हूँ और हम सारे मर्ज को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने किया pd डॉट मर्ज, ठीक है। मैंने मर्ज किया कैसे? लेफ्ट को और राइट को, ठीक है, यानी कि मेरा डेटा 1 जो कि मेरा लेफ्ट में है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ डेटा 2 मेरा राइट साइड में रहे, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैंने ऑन क्या बोला, आईडी के बेसिस पे इनका जो क्या बोलते हैं आईडी के बेसिस पे हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। आईडी के बेसिस पे इन लोगों को हम फर्दर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ऑन मैंने क्या लिखा, ऑन में मैंने यू अंडरस्कोर आईडी पास कर दिया। सर डेटा फ्रेम में डी कैपिटल नहीं होता? डेटा फ्रेम में डी कैपिटल हो गया, बिल्कुल, डी और एफ में कैपिटल होता है। Good. ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ जो मैंने मर्ज किया है, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ। तो देखो, नॉट वर्ड बिटवीन स्टार्स ऑफ टी आर एंड इंट, टी आर और इंट कहाँ से आ गया? Let's see in which line do I have the error. Okay, let's move up. Let's move up. ओके, मैंने ऊपर वाली लाइन को भी एरर फील नहीं किया है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। This should solve the problem. Now this should run. Two require left and right. Okay, arguments left or argument right. Okay, तो ये भी मुझे देना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है, लेफ्ट और राइट। Left is equals to this, right is equals to this. This should solve the issue. Positional arguments left or right दे दिए बाबा, दे दिए। pd dot merge left right. Okay, something has sent something. I have taken data one twice. Oh yeah, I have taken data one twice. Still this should be there. Yes, it is getting there. इसका नाम लेफ्ट रख लेते हैं, इसका नाम राइट रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। This should give me there. It is giving me there. Okay. Left is given, right is given. Why are you giving me an issue here? What kind of issue is this? pd dot merge left right on uid, दोनों में uid है, ऑलरेडी given है। पोजिशनल आर्गुमेंट्स की वैल्यू भी given है, डेटा 1 0 2, both of them are available here. I told you about the on that I'm going to use. Okay, what else is the mistake I'm making? Right, it is. Yeah, yeah. This shouldn't be happening actually. This shouldn't be happening. एक सेकंड रुको, देखता हूँ उसमें क्या हुआ है।
merging. Left is given, right is given. Missing two position requirements. Left, right. कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे, अभी तो हम जॉइन का भी करेंगे, बट it should have worked. There's no way that it should be. Okay, just give me a second. I'll have to look into the syntax into the definition of this thing. Why is it not working? Left is given and right is given as well. So this is not given in our outer left join. What the left given? Oh, okay, this is working. Okay, this is working for you. Name X, department X, UX, name Y, department Y. If we skip the PD merge, just a second. We shouldn't be skipping it because this is basically what the syntax is. PD merge. We have the data, and we have the data. Okay, I'm going to go see UID. And click on the same things. And it's giving me an error, surprising error. It should not be an error. That's the whole thing. Let's have a look at whether data 1 and data 2 are correct or not. Data 1 is not defined. I have to remove this. I have to run this. Okay, I got it. Okay, got your point. Okay, I have forgotten I had written pd.merge, an empty merge there, which was giving us the error. It should have got the values there. ठीक है, तो that was really silly error. तो अभी हमारे पास देखो अब अगर मैं इस डेटा फ्रेम का आउटपुट देखूं तो मेरे पास इस डेटा फ्रेम के आउटपुट में क्या क्या है, मेरे पास ये एम्प्टी डेटा फ्रेम निकल के आ रहा है, ठीक है, इसमें हमने यूआईडी ज्वाइन करने की कोशिश, कोई इंडेक्स नहीं है, कॉलम क्या है, नेम एक्स डिपार्टमेंट एक्स यूआईडी, नेम वाई डिपार्टमेंट वाई। तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है उसमें मेरे पास कोई एक्स और वाई नाम की चीज़ें ऐड हो गई हैं, लेकिन इसमें मेरे पास वैल्यूज अभी भी इंक्लूड नहीं हुई हैं, which is a little surprising because of they should have got error. We have data 1 and we have data 2. So both have name, both have department, both have UID. So it should have given us some value in the output, and that's quite surprising. Okay, तो अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो मैं इसको असाइन करूँगा एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, ठीक है, मैंने इसको असाइन किया एक वेरिएबल को, लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया सेट, और मैं z को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. दिस शुड गिव मी द प्रिंटेड आउटपुट. लुक, इज समथिंग व्हिच इज नॉट वर्किंग हियर. अगर मैं z को प्रिंट करता हूँ तो z का शेप प्रिंट कर लेता है 05, कोई भी रो नहीं है और 5 कॉलम है, ये बता रहा है. ओके, ठीक है, ठीक है. दूसरा मर्ज ट्राई करते हैं, इस वाले मर्ज से ये मर्ज नहीं हुआ, ठीक है. हमारे पास और भी मर्ज के तरीके हैं. मैं लेफ्ट और राइट के साथ मैं क्या करना चाहूँगा, मैं आईडी और आईडी के साथ मैं क्या करना चाहूँगा, मैं लेफ्ट ज्वाइन करना चाहूँगा इस बार, सिंपल लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, सिंपल लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है. अगर मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना है तो मैं इसमें हाउ को भी डिफाइन करूँगा अपने, ठीक है, जो मेरा हाउ है मैं उसको डिफाइन कर देना चाहूँगा यहाँ पर, हाउ इज इक्वल्स टू लेफ्ट, ठीक है. दिस
join it, and now if I try to print z, it should give me, ठीक है। तो अब मैंने हाउ को वहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, तो उसने मुझे ज्वाइन करके कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन किया, तो इसने मुझे जो लेफ्ट वाला आउटपुट है, जो मेरा लेफ्ट में ज्वाइंड है, उसको इसने मुझे आउटपुट में दे दिया, ठीक है। जो राइट वाला है उसको उसने नैन कर दिया। अगर मैं इसको राइट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको राइट कर दूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ जी को, तो ये लेफ्ट वाले को खाली छोड़ देगा और राइट वाले को मुझे यहाँ पे शो करके दे देगा, ठीक है। तो किसको शो करना है, किसको नहीं शो करना है, वो हम हाउ के ऊपर छोड़ देते हैं। हाउ हमारा बेसिकली डिसाइड करता है कि मतलब कौन सा वाला शो होगा, कौन सा वाला शो नहीं होगा, ठीक है। हाउ के अंदर क्या क्या वैल्यूज सकते हो, लेफ्ट, राइट, आउटर, इनर, ठीक है। तो 4 तरह की आप वैल्यूज दे सकते हो। तो हमने लेफ्ट देखा, राइट देखा, एक बार आउटर और एक बार इनर भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, अगली वैल्यू हो गया आउटर। आउटर में क्या किया इसने, अब इसने पहले ये 4 कॉलम लिए, ठीक है, और आई मीन जो पूरा डेटा लिया उसने, उसमें से लेफ्ट वाले को शो किया, राइट वाले को शो नहीं किया। फिर उसने क्या किया, उसी डेटा को दोबारा से रिपीट कर दिया, ठीक है। इस बार इसने राइट वाले को शो किया, लेफ्ट वाले को शो नहीं किया, यानी कि यहाँ पे वैल्यू खाली छोड़ दी और यहाँ पे इस वाली वैल्यू को खाली छोड़ दिया। ये हो गया आउटर। अगर आप इनर करोगे तो इसका ऑपोजिट होना चाहिए। लेट्स सी, ओके, इनर ज्वाइन हुआ ही नहीं, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर, लेफ्ट, राइट, आउटर, इनर, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके से इसको ज्वाइन करना चाहते हो, इन तरीकों में से आप अपना तरीका आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को ज्वाइन कर सकते हो फर्दर अपना। लेकिन ये जो हमारा मर्जिंग है, इसके अलावा भी हमारे पास 2 अलग तरीके होते हैं, ठीक है। और 2 इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं। एक होता है कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, जिसको हम कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास, एक होता है ज्वाइन। लेट्स तो है वो लोग कहते हैं ज्वाइन। अपेंड भी हमारा काम करता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम अपेंड को भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा मर्ज हो गया, ये इसका इस्तेमाल हमारा बेसिकली तब होगा जब मैं लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम के अपना डेटा डिफाइन करना है, उसके बेसिस पे मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ठीक है, लेकिन अगर मुझे बहुत सारी सीरीज गिवन हो या फिर डेटा फ्रेम गिवन हो और मुझे उनमें फर्दर कॉन्कैटिनेशन करना है, तो मेरे पास तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। अब मैं कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करूंगा डेटा 1 और डेटा 2 को, ठीक है। मेरे पास अभी भी फॉर्मेट वही है, pd डॉट कॉन्कैट, मर्ज की जगह कॉन्कैट आ गया। लेकिन अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैं लिस्ट की तरीके पे दोनों को पास करूंगा, डेटा 1 कॉमा डेटा 2। मैं इस चीज़ को प्रिंट कर दूंगा और ये चीज़ काफ़ी आसान है मर्ज के कंपेरिजन में, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो यहाँ मैंने कॉन्कैटिनेट किया, इसने क्या किया, दोनों डेटा को कॉन्कैटिनेट कर दिया बेस्ड अपॉन द हेडिंग, ठीक है। तो जो भी दोनों डेटा के अंदर नेम के अंदर था, उनको एक के नीचे एक ले आया ये, और जो भी डिपार्टमेंट के नीचे था उनको एक के नीचे एक ले आया, और यूआईडी को भी एक के नीचे एक लेके चला आया। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक और कॉलम होता मेरे डेटा के अंदर, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक और कॉलम है और उसका नाम रख लेते हैं कुछ भी, ठीक है। वैल्यू दे देते हैं उसको कुछ भी, ठीक है। इसको लिस्ट में पास कर देते हैं और अब इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं डेटा 1 और डेटा 2 को। तो अब देखो हमारे पास क्या है, एक नया कुछ भी नाम का कॉलम आ गया, और जो भी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नाम का कॉलम मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता था पहले वाले डेटा फ्रेम के लिए, डेटा 1 के लिए, तो वहां पे नैन वैल्यू आ गई, और जहां पे एग्जिस्ट करता है उनके लिए वो वैल्यू निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, चीजों को आसान करके रखता है और हमारे लिए मैनेजमेंट काफी आसान हो जाता है। तो कॉन्कैटिनेशन इज समथिंग जो कि आसानी से कॉन्कैटिनेट कर सकता है डेटा को हमारे डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि जो इंडेक्स है वो भी एज इट इज उसने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मेरा जो इंडेक्स है मैं चाहूंगा कि वो रीसेट होना चाहिए। आई मीन देखते हैं रीसेट इंडेक्स करता है या नहीं करता, या एरर देता है। ओके गुड। तो अब क्या है, ये पुराना इंडेक्स था, ये अब एक कॉलम बन के आ गया और अब एक नया इंडेक्स बन के आया 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरा जो डेटा है, ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम अब ऐड हो चुका है, ठीक है। और मैं इसको इसके अंदर पास करना चाहूँगा सी नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और मैं सी नाम के वेरिएबल के अंदर से एक पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ जिसका नाम है इंडेक्स।
तो इसको डिलीट करने का तरीका क्या है, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? डेटा फ्रेम में से अगर मुझे एक कॉलम को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट कर सकता हूं मैं? somebody should answer. then ड्रॉप, ओके, ड्रॉप ड्रॉप के अंदर मुझे क्या पास करना होगा? चलो आपका फंक्शन ट्राई करते हैं। सी के अंदर ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर क्या लिखना होगा मुझे? इंडेक्स। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। ये तो कुछ गड़बड़ ही आ गया, ये तो हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्या एक्सेस भी पास करना था इसमें? चलो एक्सेस भी ट्राई करते हैं। बूम, इट वर्क। तो ड्रॉप ही हमारा फंक्शन है, और लेकिन कॉलम को अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप फंक्शन लिख देना काफी नहीं है। ड्रॉप के साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि एक्सेस भी पास करें हम। तो देखो अब हमारा डेटा प्रॉपर्ली ज्वाइन होके आ गया, प्रॉपर्ली इंडेक्स होके भी आ गया। तो ये कुछ तरीके हैं बेसिकली डेटा के साथ खिलवाड़ करने के लिए हमारे पास। ठीक है, अभी कॉन्कैटिनेशन में कुछ चीजें और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि सर वो पोप से भी हो जाता? हाँ, वो पॉप से भी होता है। बहुत सारे तरीके हैं, एक ही तरीका नहीं है, बल्कि जहाँ तक मैं समझता हूँ 3 से 4 तरीके हैं इसको करने के। तो आप कोई सा भी तरीका अपना सकते थे इसको करने के लिए। ठीक है, तो ओके सर। अभी जो हमने कॉन्कैटिनेट किया है इसके अंदर हमें रीसेट इंडेक्स करना पड़ा। ठीक है, हमें इंडेक्स को अपनी तरफ से डिफाइन करना पड़ा इसके अंदर। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसके थ्रू कि हम ज्वाइन कर सकें और हमें मतलब इसमें कुछ इंडेक्स को डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े? ऐसा हो सकता है क्या? तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कॉन्कैटिनेशन के अंदर हम एक वेरिएबल है जिसको पास कर सकते हैं, जिसका नाम होता है इग्नोर इंडेक्स। ठीक है, इग्नोर इंडेक्स। तो आई एम गोइंग टू कॉपी पेस्ट दिस थिंग, और पहले वाले को में से मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेट के अंदर अब मैं क्या करना चाहता हूँ? ठीक है, ठीक है, मैंने पूरा कोड ही हटा दिया वहां से। ठीक है, ईडी डॉट कॉन्कैटिनेट किया मैंने, और डेटा 1 डेटा 2 किया, और उसके साथ मैंने क्या पास किया? मैंने पास किया इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू। कि भाई जो इंडेक्स है ना तुम उसको इग्नोर करो, और तब उसके ऊपर अपना पूरा पूरा काम चालू करो। अब मैं चाहूंगा प्रिंट करना किसको? सी को। देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। बूम, हमें कुछ भी डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा हमारे पास आंसर आ गया। तो यू सी आप उतना, ये जो हमने इतना 2 लाइन लिख के इसको सॉल्व किया, उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता था यूजिंग ए सिंगल पैरामीटर। इसीलिए हमें अपने सारे फंक्शन के जो भी पैरामीटर्स होते हैं, हर एक फंक्शन के हर एक पैरामीटर की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वो पैरामीटर क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, सो दैट थिंग्स बिकम ईजियर फॉर अस। और ये जो कॉन्कैटिनेशन है ना, आप कॉन्कैटिनेशन को अपेंड से भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, जैसे कि डेटा 1 डॉट अपेंड डेटा 2। जैसा कि मैं आपको पहले भी एक बार बताया था कि इट इज क्वाइट इजी टू अपेंड डेटा फ्रेम और सीरीज एज वेल। तो देखो अपेंड नाम का जो फंक्शन जो होता है लिस्ट में हुआ करता था पाइथन में, वही हमारे पास पांडास के अंदर भी अवेलेबल है, और ये हमारे 2 डेटा फ्रेम को ज्वाइन करने में सेम जो कि सेम कॉलम नेम के अकॉर्डिंग ज्वाइन करके देता है, ये भी काम कर सकता है। तो दिस इज क्वाइट अ वे टू ज्वाइन द डेटा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसके साथ और भी एक्सप्लोरिंग करेंगे, और आपको कुछ और भी सीखने को, अलग तरीके की चीज़ें इसमें सीखने को ट्राई करने को मिले, और आप इसमें कुछ और चीज़ें भी आगे बढ़ाएं इसके अंदर। ठीक है, तो these were some of the ways through which we toy with our data। हम उसको मर्ज करते हैं, उसको कॉन्कैटिनेट करते हैं, उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट, और फिर उसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एग्रीगेशन करते हैं, और या कोई किसी तरह का फिल्टरिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि डेटा मैनिपुलेशन में इस्तेमाल होते हैं, डेटा के साथ खिलवाड़ करने के लिए, डेटा में से फैक्ट्स निकालने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग के लिए सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो पांडास बेसिकली हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन के लिए, डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे अच्छा मतलब इससे बेहतर कोई मतलब पाइथन के अंदर कोई सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें इकट्ठा एक साथ अवेलेबल करके दे देता है डेटा एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब जो आप लोगों को तीनों डेटा दिया हुआ है उसमें आप लोग इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करोगे अपने डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए। डेटा में कितने ग्रुप्स हैं, कितने तरह की वैरायटी है उसमें, और
हर एक का इंडिविजुअली, जैसे कि अगर सपोज 4-5 तरह का ग्रुप है आपके डेटा के अंदर, तो आप जानना चाहोगे कि हर एक ग्रुप का अपना अपना मतलब अपना पार्ट क्या है, अपना हर एक ग्रुप को आप कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, हर एक जो ग्रुप है वो अपने आप में क्या है, एक क्लस्टर है, कैसे आप एक क्लस्टर को दूसरे क्लस्टर के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं और ट्राई करने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का पांडास खत्म हो जाता है। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज़ को जितना ट्राई कर सको उतना ट्राई करो, स्पेशली पांडास में, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि पांडास में करने के लिए बहुत कुछ है, कंटेंट बहुत कम नजर आता है लेकिन इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम है जिसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो मैं आप लोगों को लीनियर रिग्रेशन कराऊंगा, और लीनियर रिग्रेशन के बेसिस पे आप लोगों को हम एक डेटा सेट उठाएंगे। मैं चाहूंगा कि कोशिश करूंगा कि हम हाउसिंग मार्केट के ऊपर काम करें या फिर स्टॉक मार्केट वाला डेटा उठाने की भी कोशिश करूंगा, जो भी मुझे सिंपल लगेगा आप लोगों को समझ में आने लायक उसके ऊपर, या फिर हो सकता है कोविड-19 का जो डेटा हम उसको ऊपर ही शुरू करें और उसके बेसिस पे हम एक लीनियर रिग्रेशन का एप्लीकेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस लाइब्रेरी का एक्चुअली, ठीक है, आप बस इतना समझो, एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है साइकिट लर्न, SCIKITLEARN। ठीक है, जो कि मशीन लर्निंग की स्पेसिफिक लाइब्रेरी है, साइकिट लर्न। तो मैं चाहूंगा कि आप इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके रखिए अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर आप क्या नाम है, एनाकोंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कोंडा इंस्टॉल साइकिट लर्न। अगर आप सिंपल पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो बेसिक वर्जन है, तो आप उसमें लिखेंगे पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न। दोनों ही मेथड से इंस्टॉल हो जाता है, और इसका इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक सिंपल एप्लीकेशन बिल्ड करने में, जो कि रिग्रेशन के थ्रू हमें ये बताने की, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा कि फ्यूचर में ये जो केसेस ग्रो कर रहा है वो कैसे ग्रो कर रहा है और कितना ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, सब कुछ प्रिडिक्ट करके नहीं दे सकता लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इट इज द मोस्ट बेसिक एल्गोरिथम, पर हम उतना ही करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में कुछ हिस्से थे जिनका थर्ड में इस्तेमाल था, और मैंने बोला था कि तीनों के वो हिस्से एक साथ चलेंगे। तो आपका फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल खत्म हो चुका है। थर्ड मॉड्यूल में आपका बस ये मशीन लर्निंग वाला पार्ट जो है एक्स्ट्रा, बस वो बाकी है। और उसके साथ साथ हम मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम पढ़ेंगे कल की क्लास में, और उसके साथ साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करके उसका एक एप्लीकेशन भी डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम एक और एप्लीकेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 2 क्लास होने वाली है मैक्सिमम। ठीक है, या फिर अगर हम सैटरडे को ही क्लास करते हैं तो वो 3 साढ़े 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, 4 घंटे के अंदर हम दोनों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इट्स अप टू यू, आप लोग चाहो तो कल 2 घंटे और फिर सैटरडे को 2 घंटे कर सकते हैं, या फिर सैटरडे को 4 घंटे में एक साथ फिनिश कर सकते हैं। लेट मी नो यू गाइस स्ट्रेट अवे। ओके, मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, बट आई एम अवेलेबल फॉर द क्वेश्चन आंसर्स एंड योर रिस्पॉन्सेज।